السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللرجال علیہن درجہ وقال تعالی فی مقام آخر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أن تكسوها إذا اكتسيت وفي رواية إذا اكتسبت، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت إلا في البيت، رواہ ترمذی۔ معزز حاضرین، نیز جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام پردہ نشین خواتین، عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، امام محترم، میں نے سوچا تھا کچھ پوائنٹ ترتیب دے لوں تاکہ بالترتیب آپ کے سامنے باتیں ہو سکے، لیکن جو ہے اتنا وقت نے ساتھ نہیں دیا اور آپ کے روبرو پیش ہونا پڑا۔ بہرحال کوشش کروں گا جو بھی بات کروں میں پیور کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا کروں گا مولا کریم مجھ ناچیز کو سب سے پہلے اور اس کے بعد تمام لوگوں کو جو کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کتاب و سنت کا پیغام ہم سب تک پہنچے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر پرفیکٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ہر کوئی ادھورا ہے، ہر کسی سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہر کسی سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہر کوئی بشر ہے، انسان ہے۔ وہ انسان مرکب من الخطایا والنسیان، انسان کہتے ہی ہیں خطا نسیان یعنی بھول چوک کا مرکب مجموعہ۔ تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب، کچھ نہ کچھ نقص، کچھ نہ کچھ کمی آپ دیکھیں گے۔ یہاں حقوق کی اگر بات کی جائے تو ہمارے سماج کا ایک المیہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا حق یاد رہتا ہے، سامنے والے کا نہیں یاد رہتا ہے۔ ہم کو کیا حق لینا ہے سامنے والے سے یہ تو یاد رہتا ہے، لیکن سامنے والے کو کون سے حقوق دینے ہیں یہ اکثر اوقات بھول جاتے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنا حق یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کے بھی حقوق کی پاسداری کریں، اس کی بھی حفاظت کریں، اس کے بھی حق کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مردوں کا مرتبہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کہہ کر عورتوں پر بڑھایا ہے۔ اچھا، کیوں بڑھایا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے مرتبہ دے دے۔ کفار و مشرکین پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے ہوئے کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اللہ کو اگر قرآن ہی نازل کرنا تھا، وحی بھیجنا ہی تھا، جبریل کو آنا ہی تھا، تو ہم جیسے چودھری پہ کیوں نہیں آیا؟ کسی بڑے آدمی پہ، رئیس خاندان پہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں بھیجا؟ یہ محمد ایک ایسا شخص جو یتیمی کا تاج لیے ہوئے ہے سر پر، جس کے 6 برس کے بعد اس کی ماں بھی چل بسی، پیٹھی میں کا باپ انتقال کر گیا، غریب انسان، گمنام انسان، اس پر جبریل علیہ السلام آئے، بڑے آدمی پہ کیوں نہ؟ تو یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن مجید میں دوسری جگہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسالت کا منصب کس کو دینا ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم کون ہوتے اس کا فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے نا، یہ پہلی وجہ ہے۔ وبما انفقوا، یہ جو خرچ کرتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے، یہ جو خرچ کرتے ہیں دوسری جگہ وجہ ہے۔ آپ نے یہ تو جان لیا
کہ مردوں کا مقام عورتوں پر بڑا ہے کیونکہ یہ پرووائڈر ہیں، یہ سسٹینر ہیں، یہ ان کے محافظ ہیں، یہ ان کے نگران ہیں، رولر نہیں ہے۔ رولر وہ جو حاکم ترجمہ کرتے ہیں نا، رولنگ کرنے والے، اس کو ایسے ہی کرنے کا نہیں، یہ نہیں، پیار سے سمجھانے والے اور ان کے انتظاماتوں انصرامات کا خیال رکھنے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بڑھایا ہوا ہے۔ تو اس مناسبت سے میں پہلے مردوں کے حقوق بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ شوہروں کا یا مردوں کا جو عورتوں پر حق ہے، وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عورت مرد کی اطاعت کرے۔ عام طور پہ کبھی ہوتا ہے نا، کبھی میری بھی مانو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کی مانو، تم اپنے شوہر کی مانو۔ اگر کوئی عورت یہ شکایت کرے کہ میری کبھی تم کوئی بات نہیں مانتے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مرد ہمیشہ حق پر ہوگا، اگر عورت حق پر ہو تو مرد کو ماننا چاہیے، لیکن اسلام نے جو حکم دیا ہے کسی ایسے معاملے میں جو جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے، شوہر کرنے کا حکم دے رہا تو عورت کو ماننا اس کا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے، نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی اگر کرتی ہے تو مرد کا یہ حق لے ڈوبتی ہے۔ مرد کا یہ حق ہے کہ عورت کو اگر کہہ دیے تجھے فلاں کام کرنا ہے، تجھے فلاں کو گھر میں نہیں آنے دینا ہے، تجھے فلاں جگہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تجھے فلاں کام نہیں کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے۔ پہلا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیک اور مومنہ عورتوں کی یہ علامت ہے، یہ پاک باز ہوتی ہے، قانتات اطاعت گزار ہوتی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت اللہ نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے اس کی یہ حفاظت کرتی ہیں غیب میں، یعنی شوہر گھر پر موجود نہ ہو تو ایسا نہیں کہ بھی آزاد ہو گئی، اس کی رازدار ہوتی ہے، اس کی پاسبان ہوتی ہے، اس کی محافظہ ہوتی ہے، اس کے آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہوتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ دیکھیے اطاعت کے سلسلے میں عورت کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ مرد اس کو کسی جائز کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہو اور عورت انکار کر دے، یہ حق ہی اس کو نہیں پہنچتا ہے، یہ حق ہی نہیں ہے اسے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، یہ روایت آپ کو صحیح بخاری کے اندر ملے گی، صحیح بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر۔ فرمایا اذا، خاص طور پہ اس معاملے میں جب شوہر اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے اسے آواز دے رہا ہو، اپنے بستر کی طرف اسے بلا رہا ہو، اسے حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ انکار کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشها، جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، فابت علیہ، اس پر وہ انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں، یعنی شام کا وقت ہو، اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی بندہ اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کرتے، فابت علیہ لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، وہ عورت صبح تک فرشتوں کے لعنت کی حقدار بن جاتی ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، صحیح مسلم شریف کے الفاظ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں میری جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بھی انسان جب اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے وہ انکار کر دیتی ہے، فابت علیہ، اس پر وہ انکار کر دیتی ہے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا، وہ اس کو بلایا، بیوی نے انکار کر دیا تو اس بات پر آسمان والا اس سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے۔ شوہر کو خوش رکھنا، دیکھیے انسانی زندگی ہے، کبھی کچھ انبن ہو جائے، کبھی اس طرف سے کچھ، کبھی اس طرف سے کچھ، یہ زندگی ہے، چلتے رہتا ہے،
अगर इस तरह की नौबत पेश हो जाए तो औरत शौहर को मनाए, हत्ता कि हादिस में हाँ ये तफसील मौजूद है कि औरत आए, अपने हाथ अपनी बाह है उसकी बाहों में डालकर कहे मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगी नहीं पीऊंगी जब तक तुम मुझसे राजी नहीं हो जाते हो। अगर ऐसा नहीं करती है, चल तू उठा रे, चल तेरा बिस्तरा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, अगर ये मिजाज बीवी अपनाती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इल्ला कान अल्लज़ी फिस समाई साखितन अलैहा हत्ता यरदा अन्हा, इस अमल पर आसमान वाला यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन औरत से उस वक्त तक नाराज रहता है जब तक कि उसका शौहर उससे राजी ना हो जाए। यानी जब तक आ करके बैला फुसला करके अपने शौहर को औरत राजी नहीं कर लेती है तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है नाराजगी की हकदार रहती है। अल्लाह ताला उस औरत से नाराज रहता है। कौन चाहेगा बंदा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे नाराज रहे, लेकिन अमल अगर औरत का ऐसा है कि उसका शौहर उससे नाराज है और वो मनाती नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज है यहां तक कि उसका शौहर उससे राजी हो जाए। आगे एक और हदीस प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत तंदूर पे खड़ी हो, रोटियां पका रही हो, ख्वाहिश की तकमील के लिए अगर उसका शौहर उसको कहता है कि आ जा मेरे पास, वलौ अला तन्नूर, हदीस के अल्फाज है, अगर तन्नूर पे खड़ी हो, तेरी रोटियां जलती हैं जल जाए, खाना तेरा बर्बाद होता है बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी ख्वाहिश सर्द ना होने पाए, तुझे उसके पास हर काम छोड़ करके आना है। अगर वो तुझे बुलाता है तो हर काम छोड़कर तुझे उसके पास आना है, ये शौहर का हक है, तुझे इनकार करने का हक नहीं है, आना है तुझे उसके पास। भाइयों ये रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहर को दिया हुआ है, तो औरत को इनकार नहीं करना चाहिए। और मकाम इतना बढ़ाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा और तिरमिज़ी वगैरह के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी, लौ अमरतु अन तस्जुदा लिअहदिन अन तस्जुदा लौ अमरतुल मरअ ला अमरतुल मरअत अन तस्जुदा लिज़ौजिहा लौ कुन्तु आमुरन अहदन अन यस्जुदा लिअहदिन ला अमरतुल मरअत अन तस्जुदा लिज़ौजिहा। अगर कायनात के अंदर किसी के सामने झुकना जायज होता, अगर इस दुनिया के अंदर किसी को किसी का सजदा करना जायज होता और मैं हुक्म देता कि कोई किसी का सजदा करे, ला अमरतुल मरअत अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, तो मैं एक औरत को यह हुक्म देता कि तू अपने शौहर के सामने झुक, उसके सामने सजदा कर। अल्लाह होगा, सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज नहीं। अगर ये जायज होता कि किसी का सजदा किया जाए और मैं किसी को हुक्म देता कि कर सजदा, तो बीवी को हुक्म देता कि तू अपने शौहर का सजदा कर। क्यों? लिअज़म हक़्क़िही अलैहा, उसके ऊपर इसका जो बड़ा हक है, इस वजह से उसके ऊपर जो बड़ा हक है इस वजह से। और दूसरी रिवायतों में सुनन तबरानी वगैरह के अंदर ये तफसील मौजूद है, इतना बड़ा हक है कि अगर नथुने फूट जाए या कोई फोड़ा शौहर के बदन में निकला हुआ हो, वहां से पीप और मवाद बह निकले, पीप और मवाद बह निकले, और सदीदन और दमन का लफ्ज मौजूद है, पीप निकले या खून निकल जाए, औरत अपनी जुबान से चाक करके उसे साफ करे, फिर भी उसका हक अदा नहीं कर पाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा मर्तबा दिया हुआ है। आमतौर पे अपने घरों में देखा जाता है, छोटी छोटी बात पर नाराजगी, छोटी छोटी बात पर लड़ाई, बात मनवाने की जिद और आना, तो ये इस मामले में ध्यान रखना चाहिए कि शौहर को इस बात का पाबंद नहीं बनाएगा कि वो बीवी की माने। हाँ, अगर जायज बात का हुक्म दे रही है तो मानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे शौहर गुटखा खोर हो, बीवी कहती है आप गुटखा छोड़े, हाँ गुटखा छोड़े, तो मानना चाहिए उसकी बात। आप किसी गलत राह पे हो, बीवी कह रही है उसको छोड़ो, उस गलत राह से पलटो, तो आपको मानना चाहिए। लेकिन किसी जायज अम्र में अगर दोनों का इख्तलाफ हो जाए, शौहर भी सही बोल रहा है, एक तरफ उसका हुक्म है, और बीवी भी कहीं ना कहीं किसी अच्छे काम पर अड़ी हुई है, नहीं आपकी नहीं मानना, मुझे अपनी मनवाना है, तो ये यहाँ औरत गलत होगी, यहाँ औरत गलती पर होगी, यहाँ मानी बात शौहर की जाएगी, क्योंकि उसका मर्तबा अल्लाह ने बड़ा किया हुआ है और बीवी को यह हुक्म दिया कि अपने शौहर की अताअत कर। इस अताअत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए अजर भी रखा हुआ, बेशुमार अजर रखा हुआ, इतना बड़ा अजर कि शायद ही कोई खुशनसीब हो जिसे ये मिल जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरातु इज़ा सल्लत खमसा, सही तरगीब व तरहीब के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। अल मरातु इज़ा सल्लत खमसाहा,
औरत जब 5 नमाजें अदा कर ले, औरत जब 5 नमाजें अदा कर ले, वह सामत शाहरहा, रमजान के रोजे रख ले, वह अहसनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, वह अताअत बालहा, अपने शौहर की अताअत कर ले, उसकी बात मान ले, उसकी बात मान ले, उसकी अताअत करे जायज अमर में। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, आपका मर्तबा अल्लाह ने, यानी मर्दों का मर्तबा अल्लाह ने जितना भी बढ़ाया हो, अगर कोई नाजायज काम करने का हुक्म देते हो बीवी को, तो आपकी अताअत नहीं की जाएगी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ये मुसल्लमा उसूल आप लोग याद रखना। बुखारी की रिवायत है, 4043 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहां रब की नाफरमानी हो रही हो, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, वहां किसी भी मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। मौलवी साहब कह रहे हो तो भी नहीं मानी जाएगी बात, इमाम साहब कह रहे हो तो भी नहीं मानी जाएगी, बीवी कह रही है तो भी नहीं माना जाएगा, शौहर कह रहा तो भी बात नहीं मानी जाएगी, माँ बाप अल्लाह के अगेंस्ट अगर जा रहे हैं, हुक्म दे रहे तो भी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर जायज कामों का हुक्म दे रहा है शौहर बीवी को, तो बीवी को मानना जरूरी है। फरमाया वातात बालहा, नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने के बाद अगर शौहर की अताअत कर लेती है, दखलत मिन अबवाबिल जन्नति शात, दखलत मिन अबवाबिल जन्नति शात, उससे कहा जाएगा, दूसरी बातों के अल्फाज कील लहा दुखुलिल जन्नता मिन अबवाबिल जन्नति शात, उससे कयामत के दिन कहा जाएगा तेरे लिए एक नहीं, जन्नत में जो 8 दरवाजे अल्लाह ने बनाए, सारे दरवाजे खुले हुए, जा जिस दरवाजे से तू पसंद करे जन्नत में चली जा। बताओ, वो बंदा यकीनन खुश नसीब है जिसके लिए जन्नत का कोई एक दरवाजा खुल गया। वो औरत कितनी बड़ी खुश नसीबा है कि उसके लिए अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। करना क्या है, ये 4 काम बताए। नमाज पढ़ेगी, रोजा रखेगी, अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, हयादार बन के जिंदगी गुजारेगी, और अपने शौहर की बात मानेगी, उसकी अताअत करेगी, उसकी नाफरमानी नहीं करेगी, और 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो हमको, हमारी खवातीन को चाहिए, हमारे घरों की खवातीन को या हमारी माँ और बहनों को, जहां तक भी मेरी आवाज लाउड स्पीकर के जरिए पहुंच रही है, कि वो अपने शौहर की जरूर अताअत किया करे। दूसरे एक और हक है, हाँ, बदजुबानी ना करे अपने शौहरों से, उन्हें सताए ना, ये शौहर का हक है। देखिए आपस में भी दोनों के कुछ हुकूक है जो दोनों पर आयद होते, हशाश बशाश जिंदगी गुजारना, एक दूसरे से खेल कूद करना, हंसी मजाक करना, ताकि जिंदगी थोड़ी रंगीन हो जाए। आमतौर पे अपने यहाँ ना तुरसुरोई वाला मिजाज है, तुरसुरोई वाला मिजाज है। एक तो शौहर दिन भर इधर उधर दोस्तों के साथ गप्पे मारता है, शाम को आया तो मोबाइल पकड़ा, उसमें मसरूफ हो गया, बीवी के लिए कहा उसके पास वक्त है, बेचारी पर्र पर्र कर रही है, उसके हाँ ना का भी जवाब नहीं देने के लिए तैयार, हाँ ना में जो क्वेश्चन आंसर होता है उसका भी वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लगता है शादी उसकी मोबाइल से हुई है, बीवी से नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर भी है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम और बुखारी दोनों किताबों के अंदर ये बात आपको मिल जाएगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अल्लाह के नबी ने कहा था, वो रावी है, उन्होंने शादी किया तो सैयबा से, एक ऐसी औरत से जो शौहर दीदा थी। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, कहा शादी किया किससे, बिकरन अम सैयबा, बाकरा से, कुंवारी से किया कि सैयबा से जो पहले से शादीशुदा थी। कहा या रसूल अल्लाह सैयबा से। कहा सबब क्या? कहा या रसूल अल्लाह जो है मेरे पास बहनें थी, मैं नहीं चाहता कि उन जैसी कोई आ जाए उनकी तरबियत करने वाली ना हो, इसलिए मैंने उमर दराज से किया, सैयबा से किया। अल्लाह के नबी ने कहा फहल्ला बिकरन तुलाइबुहा व तुलाइबुका व तुदाहिकुहा व तुदाहिकका, बाकरा से करता तो तू उसके साथ खेलता, वो तेरे साथ खेलती, तू उसे हंसाता, वो तुझे हंसाती। मकसद बताया है। हाँ, शादी का मकसद नहीं जैसे तैसे करके बच्चे पैदा कर लेना, जिंदगी गुजारना। मकसद जो बताया अल्लाह ने, तस्कुनू इलैहा, सुकून होना चाहिए। अगर शादी के बाद आप और परेशान हो तो शादी का मकसद फौत हो जाता है। मियाँ बीवी अगर और परेशान हो गए, कहते हैं यार शादी से पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी, अभी तो बहुत जहन्नम बन गई है जिंदगी, तो शादी का मकसद फिर हासिल नहीं हुआ। आप इस्लाह करें अपनी, मर्दों को भी इस्लाह की जरूरत है, खवातीन को भी इस्लाह की जरूरत है। खवातीन भी अपनी इस्लाह करें, मर्द भी अपनी, और दोनों अपनी जिंदगी में सुकून लाए। मकसद क्या बता लगे, तुलाइबुहा व तुलाइबका व तुदाहिकहा व तुदाहिकका, वो तुझे खिलाती, तू उसे खिलाता, और तू उसको हंसाता, वो तुझे हंसाता। ये बड़ा
बड़ा अहम मसला है भाई, बड़ी अहम जिंदगी है ये। शौहर बीवी की जो लाइफ है ना, ये बहुत अहम है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आपको बीवी की बाहों में आकर जो सुकून मिलेगा ना, दुनिया की अलग अलग औरतों के पास रोजाना आप जाओ, रंडी खानों में जाके अपनी प्यास बुझाओ, आप इंशाअल्लाह आपको कभी वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको अपने घर में मिलेगा। अल्लाह ने ये मकसद बताया, लितस्कुन इलैहा, ताकि तुम आपस में सुकून हासिल करो। आपको ख्वाहिश की तकमील के लिए बाहर भी आप पैसे फेंको, तमाशा देखो, खवातीन मिल जाएंगी, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए शादी का अल्लाह ने हुक्म दिया और शादी कराया और सुकून का जरिया बनाया हुआ इसे जहन्नम न बनाया। अल्लाह ने देखो कहीं झूठ बोलने की इजाजत नहीं दिया है, लेकिन इस जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए यहां मुस्लिम शरीफ की हदीस से इजाजत दिया हुआ है, तालिफिल इस्लाह बैनन नास, तालिफिल हर्ब वल इस्लाह बैनन नास, जंग में लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, दो रूठों को मिलाने के लिए, जो झगड़ा किए हुए लोगों को आपस में एक करने के लिए, वह हदीस अर्रजुल इमरात व हदीस अलमरअत ज़ौजा, आदमी का अपनी बीवी से और बीवी का अपने आदमी से, शौहर से आम बातचीत और गुफ्तगू में भी झूठ बोलने की इस्लाम ने इजाजत दी, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। और मान जाओ शरीयत इस्लामिया के इस कानून कि आप और मामले में झूठ बोलोगे गुनाह लिखा जाएगा, इंदल्लाह मुजरिम ठहरोगे। लेकिन ये इस कदर मुकद्दस रिश्ता है कि इसको बचाने के लिए, इसमें रंगीनी लाने के लिए इस्लाम ने आपस में एक दूसरे से झूठ को भी जायज करार दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, गप्पे मार रहा था, देर हो गई आने में, अरे काम था, चला गया था बिजनेस के सिलसिले में, ताकि बीवी आप पर ज्यादा ना गर्म हो जाए, भड़क ना पड़े। कोई उज्र बता दोगे झूठ बोलकर तो शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, नहीं ये माजूर है, किसी काम से रुके हुए थे, दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मार। इस तरह की कोई और छोटी मोटी बात हो तो उसमें शौहर का बीवी से और बीवी का शौहर से आपस में एक दूसरे से झूठ बोलना दुरुस्त है, गुनाह इंशाल्लाह उस पर नहीं लिखा जाएगा। तो भैया कह रहा था कि शौहर का यह हक है कि बीवी उसको तंग ना करे, उसके साथ प्यार और मोहब्बत से रहे, झुक कर रहे। अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर मोहब्बत की जो कशिश दी हुई है ना, श्रृंगार करके प्यार और मोहब्बत के अंदाज में अगर वो अपने शौहर को मनाने लग जाए, क्या मजाल की शौहर उसके सामने ना फिक्र, क्या मजाल, वो कौन सा शौहर ने फिर वो शैतान होगा जो बीवी की बात ना मान जाए, उसकी बाहों में फिर ना खेलने लग जाए और जो है उससे राजी ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ये कशिश औरतों में रखी हुई है और उन्हीं को हुक्म दिया है कि तू अपने शौहर को राजी करके रख, ये उसकी जिम्मेदारी है। आए इज़ा नज़रा इलैहा सर्रतुहु, थका मादा आया हुआ है, तेरा नाक फूला हुआ नहीं होना चाहिए, तेरे भौं और मत्थे सुकड़े हुए नहीं होने चाहिए, हो बड़ा बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इज़ा नज़रा इलैहा सर्रतुहु, दुनिया भर के काम काज से, थकान से, मेहनत से छुट्टी पाके तेरा शौहर तेरे घर पे आया हुआ है, ऐसा उसके सामने मुस्कुराना है कि उसका दिल ठंडा हो जाए, उसकी आंखें ठंडी हो जाए, खुश हो जाए वो तुझे देख करके। यहाँ आमतौर पे ऐसे होता है कि आया पहुंचा बेचारा, दुनिया की शिकायतें चालू, ये अब्दुल्ला ने इसको मारा है, इससे झगड़ा किया है, इसकी नाक तोड़ दी है, फला जगह शिकायत आई हुई है, घर में ये आटा नहीं है, खाने को नहीं है, तुम कहां थे अभी तक, कितना देर हो गए। ये दुनिया भर का पिटारा खोल कर बेचारा ऐसे में आरूप हो जाता है। एक तो पहले से वो थका मादा हुआ आया हुआ था और इसने अपनी बातों से उसको और ज्यादा उसका दिल खुश कर दिया। हाँ, तो ये मिजाज नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर की जरूरतें आपको बयान करना है, लेकिन वक्त तो जरा देखो कि अभी वो हक्सा प्यासा बेचारा बाहर से आया हुआ है और जरूरियात का, शिकायतों का पिटारा उसके सामने हमने खोल दिया, उसको तंग ना करे, परेशान ना करे। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किया था, सुनन अबू दाऊद की रिवायत। शिकायत क्या या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी इन ज़ौजती इन फी लिसानिहा शैया, उसकी जुबान में कुछ है। क्या जुबान में है? थोड़ी बदकलामी करती है, थोड़ी बदकलामी करती है। बाद औरतों की जुबान होती है ऐसी टन कि जैसे टेप रिकॉर्डर चालू कर दो ना, वो बंद होने का नाम है, जब तक बटन ना बंद हो ऐसे चलती रहेगी। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। बेचारा शौहर भीगी बिल्ली उनके सामने बना हुआ होता है। समाज में सिर्फ ऐसा नहीं कि औरतें ही मजलूम है, नहीं भाई, हमने देखा है ऐसी बीवी जो चढ़ के अपने शौहर को सीने पे मार रही है, हमने अपनी आंखों से देखा। शौहर बेचारा भी मजलूम है। देखिए इस्लाम ने जब निबाह ना हो, किसी कोई सूरत ना रह जाए, समझाया, थोड़ी बहुत गोशमाली की, लोगों को बिठाया, वाज़ो नसीहत हुई, कोई सूरत नहीं निकल रही है, इस्लाम ने इजाजत दिया। बीवी नहीं रहना चाहती, खुला लेके चली जाए। शौहर नहीं रखना चाहता, तलाक दे दे, भैया अब तेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता, हमने हर रास्ता अपना करके देख लिया, इस्लाम ने जायज करार दिया इसे।
अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर इम्पॉसिबल हो जिंदगी गुजारना तो हो सकता है ऐसा, कर लो, कोई बात नहीं है। हो सकता हो दूसरे के साथ हो जाओ, वो दूसरे के साथ हो जाए, तो दोनों की जिंदगी फिर समझ जाए। इसलिए इस्लाम ने खुला और तलाक की राह रखी हुई है और ये जायज है, लेकिन यूं ही नहीं, जब अजीरन हो जाए जिंदगी तब। अच्छा, और आज के दौर में ये आसान भी नहीं है। हाँ, ये मत सोचना चलो कर लेते हैं, नहीं गुजरेगा तो देखा जाएगा। जेल की सलाखों में इतने पट्टे मारे जाएंगे कि अपना नाम भूल जाओगे, ये बात याद रखना। इतने धाराएं लगाएंगे ना, ये महिलाओं का दौर है, ये महिलाओं इतनी धाराएं लगेंगी, इतनी चक्की पीसनी पड़ेगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। ऐसे तलाक बोलकर भगा देते थे ना, वो अब चला गया जमाना। सिर्फ कोर्ट तक उसको जाना, ऐसा घसीटेगी आपको ना, बिलबिलाओगे उसके सामने, गिड़गिड़ाओगे। और हाँ, बीवी भी नहीं रहेगी, खर्चा भी उसको देना पड़ेगा। आपके सामने वो गैर मर्द से ताल्लुक रखेगी। तुम्हारी इस जाहिल कोर्ट ने, इस जाहिल अदालत ने उसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है। शादीशुदा औरत, शादीशुदा मर्द अपनी मर्जी से दूसरे को सेट कर लेते हैं, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते हो। तुम्हारे सामने वो कहेगी इसके साथ नहीं रहना मुझे, किसी और से सेटिंग भी करेगी, आपसे खर्चा भी मांगेगी, और कोर्ट डंडा मार के आपसे दिलवाएगा। तेरे महीने की कितनी आमदनी है, महीने का खर्चा बेला नागा उसको पहुंचाते रहना। किराया लेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं मालिक आपको माफ कर देगा, वो माफ नहीं करेगी। तो आसान नहीं है भाइयों, बहुत सोच समझ के शादियां करना। और जिंदगी में कुछ इस तरह के नागवार बातें आए तो उसको जरा झेलने की हिम्मत भी अपने अंदर रखना। इस तरह की नागवार बातें आए तो थोड़ी झेलने की भी हिम्मत रखना। देखिए, सहाबी ने जब अल्लाह के नबी से शिकायत किया, इस बात पर थोड़ी बात अलग चली गई, या रसूल अल्लाह इन्न फी लिसानिहा शै'a, उसके जुबान में कुछ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तल्लिक़हा, उसे तलाक दे दे। यानी बीवी की बदजुबानी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तलाक दे दे उसे। अच्छा, आगे बढ़ो। वही सहाबी कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, उसके साथ तो मेरे सबो रोज गुजरे हैं, चंद माहों साल हमने उसके साथ गुजारे हैं, उससे मेरी औलाद भी है। यानी या रसूल अल्लाह, उसकी जुबान से तो मैं तंग हूं, लेकिन ये मुनासिब नहीं समझता उसको तलाक दे दूं। कभी शौहर किसी औरत पे नाराज हो गया या एक आध थप्पड़ मार भी दिया, इस तरह की कुछ बातें हो भी गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगाना चाहता, इसका मतलब ये है कि उसको राह रास्त पे लाना चाहता। और अल्लाह ने उसको ये हक दिया। एक हक ये भी है, याद रखना, इद्रिबूहुन्ना गैर मुबर्रह। अब ऐसा नहीं कि वो सोटा ले जिससे गाय बैल की पिटाई होती है, ऐसा मारे कि उसको इतनी चोट ना कि निशान पड़ जाए, हड्डी गुड्डी टूट जाए। इस बात का ख्याल रखे। थोड़ी बहुत गोशमाली कर सकता है वो, जिससे औरत को एहसास हो कि अभी मैं अगर उसकी नाफरमानी करूंगी, गलत काम करूंगी, आबरू का सौदा करूंगी, तो मेरे शौहर मारेगा। इस तरह से जो है थोड़ी बहुत गोशमाली कर सकता है वो। तो अपने शौहर से बदकलामी ना करे, ये शौहर का हक है। नफली इबादत तक औरत नहीं कर सकती, ये शौहर का हक है अगर वो घर पे मौजूद है। बुखारी की बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसूमु इमरात, ला तहिल्लु लिल मरअति अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्नी। रोजा रखे एक औरत, उसका शौहर उसके घर पे मौजूद हो, ये उसके लिए हलाल नहीं, जायज नहीं है कि तेरा शौहर तेरे घर पे हो और तू नफली रोजा रखे। फर्ज रोजे की बात नहीं हो रही। अगर शौहर कहे फर्ज रोजा तोड़ दे तो माने की बीवी, बोलो माने की बीवी बात, यहाँ फर्ज रोजे की बात नहीं हो रही, नफली रोजे की बात है। फराइज को छोड़ने का हुक्म अगर शौहर दे तो औरत को यह हक पहुंचता है कि उसको समझाए, नहीं मानता तो शौहर छोड़ दे, फराइज ना छोड़े, यह अल्लाह का हक है। पहले बता चुका हूं, जहां अल्लाह की ना फरमानी हो वहां किसी भी मखलूक की, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे शौहर, चाहे कोई भी हो, XYZ दुनिया का बड़ा से बड़ा तुर्रम खा, बड़े से बड़े हकदार, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो अगर नफली रोजा रखना उसे तो शौहर से पूछ कर ही रखेगी, आज रोजा रखने का इरादा है, रख लूं? शौहर कहता है ठीक है रख लो, तो रखेगी, वरना नहीं रखेगी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? मुमकिन है दिन में उसको हाजत पूरी करने की नौबत आ जाए और बीवी रोजे से हो तो क्या करेगा बेचारा, कहाँ जाएगा? इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि उससे पूछने के बाद ही तुझे रखना। अच्छा, बगैर शरई उज्र के एक औरत तलाक ना मांगे, ये शौहर का हक है कि छोटी मोटी बातों में उसको जो है सरजरिश कर सकता है, उसकी पिटाई तक करने का इस्लाम ने हुक्म दिया हुआ है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी से कहा या रसूल अल्लाह ज़इरन निसाउ अला अज़वाजिहिन्ना, ये औरतें तो शेरनियां बन गई है अपने शौहरों पे, ऐसी गरजती है कि लगता है कि हम इनके अंडर में है।
ज़ैरना का क्या अल्फाज, ज़ैरना निसा वाला अज़वाजिहिन्ना, ये औरतें अपने शौहरों पे शेरनियां बन गई, बहुत धाकड़ हो गई है, हाँ कुछ नहीं समझती हैं। अल्लाह फरख्खस फी दर्बिहिन्ना, अल्लाह के नबी ने इनको मारने की फिर इजाजत दे दिया, अल्लाह के नबी ने इनको मारने की इजाजत दे दिया। सुनन अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दिया, फाताफ बिआल मुहम्मदिन यस्कू अज़वाजहुन्ना, हुक्म खाल, अल्लाह के नबी के घर वालियों के पास फिर तो बहुत सारी औरतों की शिकायत आ गई। जब अल्लाह के नबी ने मारने की इजाजत दिया, साहबा ने इजाजत पाया तो जा करके जो इस तरह की थी ना, शेरनियां बन रही थी, उनकी ठोकाई कर दिया और अकल ठिकाने आ गई। फिर आए इधर बिल बिलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालियों के पास आके शायद अल्लाह के नबी ने क्या इजाजत दे दिया, हमारी ठोकाई पिटाई हो गई है। शिकायत जब पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा के सामने कहा, लक़द ताफ़ बिआल मुहम्मदिन निसाउन कसीर यस्कून अज़वाजहुन्ना, आले मोहम्मद के पास बहुत सी औरतों की शिकायत आए हुए हैं, उन्होंने शिकायत किया हुआ है, उलाइका लैसू बिखियारिन, ये अच्छे लोग नहीं, खैरुकुम लिनिसाइहिम, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हो। अल्लाह के नबी ने बताया, यानी समझाया फिर कि तुमको इजाजत क्या मिली, तुम लोगों ने जानवर की तो उनकी पिटाई कर दिया और शिकायत बहुत सारी आ गई। ऐसा नहीं, इत्तेदाल की राह में चलो। अगर नौबत आ जाती है पीटने की तो ही, और वो भी बहुत एहतियात से कि कुछ हड्डी गुड्डी ना टूटे, कोई निशान ना पड़े, चेहरे पे ना मारे, वगैरह वगैरह, इन सब बातों का ख्याल रखे। औरत अपने शौहर से तलाक ना मांगे। देखिए खुला उसका हक है, अगर जिंदगी अजीरन हो जाए, पहले भी बात कर चुका हूं, तो ले सकती है, वो अलग हो सकती है। भाई अब तुम्हारे साथ हमारा गुजारा मुश्किल हो गया, तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहती, मुझे अलग कर दो, ये कह सकती है। शौहर की जिंदगी अजीरन हो गई, भाई तुझे समझा समझा के मार मार के भी मैं थक गया, मेरे माँ बाप को बिठा के, पंचों को बुला के बिठा के भी मैं थक गया, तलाक देता हूं, तू चली जा। तलाक और खुला में यह फर्क है कि तलाक शौहर जब देगा तो महर उसको दे के भेजेगा, ले जो महर मैंने दिया था वो ले करके जा, तेरा हक है। और अगर बीवी खोला लेगी तो कहेगी जो तुमने दिया था महर ना, वो तुम वापस ले लो, मैं जा रही हूं, मुझे इजाजत दो खाली जाने की, मैं जा रही हूं। एक बात की वजाहत यहां जरूरी समझता हूं, लेकिन वक्त मेरा तकरीबन गुजर गया होगा, नहीं अभी दूसरा पहले तो बाकी है। कितना मिनट है सर? 15 मिनट है, 10 मिनट, तो दूसरे पहलू, तो औरत तलाक ना मांगे अगर बगैर किसी सबब के। छोटी छोटी बातें जो मैंने जिक्र किया, थोड़ी बहुत बात है तो इस पर तलाक मांगे, ये उज़्र नहीं है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अय्युमा इम्राअतिन सालत ज़ौजहा तलाक मिन गैरि मा बासिन फहरामुन अलैहा रायहतुल जन्ना, मुस्नद अहमद की रिवायत है। और इसी तरह सुनन अबू दाऊद किताब तलाक के अंदर भी रिवायत आपको मिलेगी, कोई औरत बगैर किसी उज्र के अगर अपने शौहर से तलाक मांगती है, उस पर जन्नत की खुशबू हराम है, उस पर जन्नत की खुशबू हराम है, तो नहीं मांगना चाहिए। अब यहां से हम शुरू करते हैं बीवियों का हक शौहरों पर। इंशाल्लाह 10-12 मिनट जो भी मेरा बचा हुआ है, कोशिश करूंगा कि इसमें मेरी बात खत्म हो जाए। सबसे पहला हक यह है कि शौहर बीवी से हक ना रखे, तो बुग़्ज़ ना रखे, शौहर बीवी से बुग़्ज़ ना रखे, ये बीवी का हक है। भाई आप खुद सोचो यार, एक आपके लिए क्या क्या नहीं छोड़ के आई हो बेचारी। क्या आप 1 मिनट के लिए आप जरा सोचो, परदेश के लिए निकलते हो, आपके बच्चे आपके पैरों तले रो रहे हैं, कैसा महसूस होता है। माँ आंखों में आंसू लेके खड़ी है, बाप बेचारा इस डर से अलग हो गया कि कहीं मेरे आंसू मेरा बेटा देख ना ले, बीवी निराश खड़ी है, बहनें बिलक रही हैं, कैसा मंजर महसूस होता है। और आप जानते हो मैं खुद मुख्तार हूं, कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा। एक औरत सब कुछ, सारे लोगों को छोड़कर सब कुछ अपना मानकर वो आपके पास हुए, क्यों बुग़्ज़ रखोगे भाई। ये पहले भी बात कर चुका, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कमियां मर्दों में भी है, कमियां औरतों में भी है। थोड़ी बहुत कुछ अगर हो तो उसको झेलने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, सब्र और बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यफरुक मुमिनुन मुमिनतन इन करिहा मिन्हा खुल्कन रदिया मिन्हा आखर, कोई भी मोमिन बंदा किसी भी मोमिना औरत से बुग़्ज़ ना रखे, इनाद ना रखे। अगर उसकी कोई एक अदा तुमको नापसंद होगी तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर खूबियां भी रखी, उससे तुम राजी हो जाओगे। कोई परफेक्ट तो है नहीं, कोई एक अदा उसकी अगर नापसंद, बहुत से लोग बयान भी करते हैं ना, मार मेहरारू बहुत अच्छी है लेकिन उसके अंदर एक कमी है, वो एक कमी बर्दाश्त करना, परफेक्ट पूरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
अपने नबी की जुबानी तुम तक ये वसीयत पहुंचाइए, इस्तौसो बिन निसाई खैरा, इस्तौसो बिन निसाई खैरा, औरतों के ताल्लुक से भलाई की वसीयत कबूल कर लो, यानी इनके साथ अच्छाई से पेश आना, भलाई के साथ तुम रहना, ये वसीयत कर रहा हूं। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़न मिन दिलइन, क्योंकि ये पिछली से पैदा हुई है। वइन आवद शैइन फि दिलइ आलाहा, सबसे ऊंची वाली जो पिछली की हड्डी वो सबसे ज्यादा टेढ़ी है, उसके बाद थोड़ा आकार सीधे वाला हो जाता है, ऊपर वाली सबसे टेढ़ी है और वहीं से पैदा हुई है ये। हाँ, और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया इन दहबता तुकीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ डालोगे। यानी इस हदीस में अल्लाह के नबी ने जो मुस्लिम शरीफ और बुखारी के अंदर मिलेगी बताया हुआ है, ये वाज़ेह पैगाम दिया हुआ है कि बिल्कुल तुम्हारे इशारों पे नाचने वाली बीवी मिल ही नहीं सकती है, बिल्कुल परफेक्ट मिल ही नहीं सकती है, बिल्कुल जो तुम कहो वही करे, तुम्हारी कभी खिलाफ वर्जी ना करे, कभी नाफरमानी ना करे, हमेशा तुम्हें खुश करने वाला ही काम करे, ऐसी बीवी तुमको मिलेगी ही नहीं। अगर उसको सीधा करने की कोशिश करोगे नहीं, जैसे मैं कहूं वैसे ही तुझे रहना, कसरता उसे तोड़ डालोगे, तोड़ना क्या है, तलाक हो जाएगा, नहीं निभाह हो सकेगा। वइन तरकतहु लम यज़ल आवजा, और अगर उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएगी। है टेढ़ी, मुकम्मल सीधी भी नहीं करना है, टेढ़ी भी नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके साथ भलाई से पेश आना है और उसके इस्लाह की कोशिश करनी है। वो भी इंसान है बेचारी, बहुत से हमारे भाई ऐसे है ना, जानवरों जैसा सलूक करते, ऐसे लोग अच्छे नहीं। उनको खिलाना और उनको पहनाना ये मर्दों की जिम्मेदारी, औरत का ही हक है। प्यारे नबी कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीम इब्न मुआविया अल-कुशैरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत कराने गालिबन सुनन अबू दाऊद के अंदर रिवायत आपको मिलेगी। कहते हैं या रसूलल्लाह, हम और आप आकर आज अक्सर जो सवालात करते अपने मतलब की और अपने हक की बातें करते, अपना हक मांगते, अपने हक के बारे में सवाल करते, ये आके पूछे या रसूलल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, हम में से एक आदमी के ऊपर उसकी बीवी का क्या हक, बताइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तुतिमहा इदा तइमता, तुम जब खाओ तो उसे भी खिलाओ, खाओ तो उसे भी खिलाओ। ऐसा नहीं कि तुम दोस्तों के साथ जाके ढाबे पे गुलछर्रे उड़ा के आ रहे हो, 5-5, 10-10 हजार का बिल फाड़ के आ रहे हो, और बीवी के लिए बेचारी वही वेजिटेबल, सूखी सब्जियां, वही दाल चावल। नहीं, तुम खाओ तो उसको भी खिलाओ। मेरे भाइयों, आपके अंदर ये मिजाज और प्यार और मोहब्बत पैदा होगी इससे। इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं, आप 2 लड्डू लेके जाओ तो सही, औरतें इस कदर नरम दिल होती हैं, एक तुम उनके सामने खाओगे, अपने वाले में से भी इंशाअल्लाह वो आपको आधा खिला देगी, इंशाअल्लाह अपने वाले में से भी आपको खिला देगी। ये जानवरों जैसा सलूक करना बंद करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने वो हुक्म दिया हुआ अन तुतिमहा इदा तइमता, खाओ तो इनको भी खिलाओ, बाहर जाके गुलछर्रे मत उड़ाओ। हाँ, कभी किसी के साथ कोई परेशानी भी आ सकती है, घर नहीं पहुंच सकता, बीवी का साथ नहीं दे सकता, नहीं खा सकता है, बाहर खाना उसकी मजबूरी है, वो इंशाअल्लाह मजबूर है, माजूर होगा। लेकिन अगर मुमकिन हो, पर्दे वाली जगह हो, बीवी भी वहां आपके साथ बैठ के खा सकती है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई फितना नहीं है, उसको भी ले जाने में इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। आपने दोस्तों के साथ बहुत पार्टियां बनाई होंगी, कोशिश करो कि अपनी बीवी के साथ पार्टी करो, इंशाअल्लाह मोहब्बत में इजाफा होगा। अंतुतिमहा इदा तइमता व तकसुहा इदा तसैता अव इक्तसबता, पहनो तो उसे पहनाओ। ऐसा नहीं हो उस बेचारी के पांव में टूटे हुए चप्पल हैं और आप 10 हजार का जूता पहन के चल रहे हो, आपके बदन पे हाँ टाई है, बेल्ट है और दुनिया भर की चीजें हैं, अच्छे से अच्छा जोड़ा जामा है, आप अच्छे से अच्छा लिबास पहने हुए हो। देखो, इस्लाम इससे मना नहीं करता मेरे भाइयों। अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दिया तो आप उम्दा से उम्दा चीज खा पहन सकते हो, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन औरत को भी अपनी इस खुशी में शरीक रखो। तकसुहा इदा तसैता, आप कमाओ, आप पहनो तो उसको भी पहनाओ, उसके लिए भी लिबास लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि आपका हर हफ्ते हर महीने चेंज हो रहा है और बेचारे को साल भर में कभी एक आध बार बता उसको नसीब हो रहा है, नहीं, ये मिजाज दुरुस्त नहीं। वला तो आर मत दिलाओ, उसका भी अपना रिस्पेक्ट है, उसके भी अपनी जिंदगी है, उसकी भी अपनी इज्जत है भाई। आमतौर पे देखा जाता है ना, छोटी छोटी बात पे नौजवान भिड़ जाता, तेरी माँ ऐसी, तेरा भाई ऐसी, तेरा बाप ऐसी। उसकी माँ बहन और भाई और बाप तक चढ़ोगे तो आपके माँ बहन और भाई की वो इज्जत करेगी? बताओ, हरगिज नहीं करेगी। वो भी फौरन, पहले से टेढ़ी है पता है आपको, वो फौरन चढ़ लेगी। तेरी भी माँ, तेरी भी बहन, तेरा क्या इज्जत रह गई फिर आपकी। वला तो कब्बे, आर मत दिलाओ,
اتنا شرم دلاتے بعض لوگ سوچتے بیچاری کہاں میری بدنصیبی لے آئی، کس اللہ کے پالے میں پڑ گئی ہوں. تو وہ بھی انسان اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. ولا تقبح ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے پہ مت مارو. ولا تقبح، اس کو عار مت دلاؤ. ولا تہجر الا بالبیت، زندگی کبھی اختلاف ہو جائے تو اس کو روڈ پہ تماشا نہ بناؤ، روڈوں پہ مت لاؤ، پبلک کے درمیان اس کی عزت کا بھرتا نہ بناؤ، بلکہ اس کو گھر میں سمجھاؤ، گھر میں ڈانٹو، گھر میں مارو، گھر کی بات گھر میں رکھو، باہر تماشا نہ بناؤ. یہ اللہ کے نبی نے حق بتایا. یعنی کمانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. نپنسک ہے وہ نوجوان جو کہتا میں کیسے مار کر کے لا. میں ایسے مرد کو نامرد سمجھتا ہوں جو اس کے میکے کے سہارے جی رہا ہو، وہاں سے مجبور کر کے اس سے مال منگوا رہا ہو. کمانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے یہ بات یاد رکھنا، گھر میں اندر پردے میں رہ کر کسی معاملے میں کسی کام میں اگر بیوی آپ کی مدد کر دیتی ہے تو اس کا احسان ماننا، ورنہ باہر دکان میں بیٹھنا، دھندے کرنا، کاروبار کرنا، سودے خریدنے جانا، سبزیاں لے کر کے آنا، باہر کے کاروبار سنبھالنا، بازار کرنا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلام نے مردوں پہ یہ بوجھ ڈالا ہوا ہے. کتنے شرم کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے مہرانو خرید لاوت، ہمارے مہرانو خرید لاوت. کیوں بھائی کیوں؟ کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں میرے کپڑے میری بیوی لے کر کے آتی ہے اور بڑے دھڑلے سے بے شرمی کے ساتھ بیان کرتے. آپ یہ کہو میں اس کے کپڑے لے کر کے آتا ہوں. بوقت ضرورت اسلام نے ان کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دیا ہے، لیکن حق شوہر کا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. کھلانے پلانے پہنانے اور سارے انتظامات کرنے کس کی ذمہ داری ہے؟ ایسے ہی اللہ نے مرتبہ نہیں بڑھایا وہ ڈھے میں کہ تم بڑے بن گئے ہو، اس سے تم خرچ کرتے ہو، اس کے پرووائڈر اور سسٹینر ہو، اس کے لیے انتظامات کرنے والے ہو، اس کے لیے خرچ کرنے والے ہو، اس کے نفقے کا انتظام کرنے والے ہو. اس لیے اسلام نے تم کو پرووائڈر اور سسٹینر بنایا ہوا، اس پر حاکم بنایا ہوا ہے. تو یہ حق ہے بیوی کا حسن اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے. اور اسی طرح سے ایک سے زائد اگر بیویاں ہوں تو سب کے درمیان انصاف کی جائے. یہ تو محال ہے. کوئی بہت بڑا خوش نصیب ہوگا سماج میں ایسا اکا دکا جو مطلب ڈبل گلاب سونگ رہا ہو، ورنہ ایک بہت ہے. ہاں، اور اسلام نے بھی کہا بھائی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں ہو پائے گا، انصاف نہیں ہو پائے گا، تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی پہ اکتفا کرنا. ہاں، زیادہ کے چکر میں پھر مت رہنا. اللہ سے دعا کروں گا مولا کریم جملہ حقوق جو مرد و خواتین کے آپس میں ایک دوسرے کے تئیں بیان کیے گئے ہیں، مجھ شیخ سلفی کو سب سے پہلے اور اس کے بعد تمام لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے. الہ العالمین ان میں ایسی روشنی ڈال دے، ایسی خوشی ڈال دے کہ زندگی پرسکون ہو جائے. مولا کریم کچھ آپس میں اختلافات ہوں کسی بھی زوجین میں، یہاں جو بھی بالخصوص بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے درمیان صلح و صفائی ڈال دے، ان کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.